Hello everyone, welcome to Alifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have discussed about the direct method to find the limit of any function, and I have given one important question to you also which is based upon the greatest integer function, है ना. तो एक small review recap आपके लिए. In the previous question number 2 we have discussed that the greatest integer function will give you the left integer. ये मैंने लिखवाया था ना आपको कि greatest integer function will give you the left integer, means if something is in between 2 and 3 the answer will be left integer 2. For example जैसे 2.1, तो ये 2.1 2 and 3 के बीच में लाई करेगा, that's why the output will be 2. And minus 2.1 lies between minus 2 and minus 3, that's why the left integer will become minus 3. So based upon this concept we have discussed this question, greatest integer function upon x. तो इसका RHL जब आपने लिखा 0 plus h, तो 0 plus h lies between 0 and 1, so left integer will be 0. So output of this greatest integer function 0 plus h is nothing but 0, so it will become 0. On the other hand you can see here that LHL, left hand function, left hand limit f of 0 minus h. So 0 minus h will lie between 0 and minus 1, है ना. ये 0 minus 1 के बीच में लाई करेगा, that's why you can see here that left integer is minus 1, तो minus 1 होगा, तो फिर 0 minus h का greatest integer output होगा minus 1. In this way the right hand limit RHL becomes infinity. So ये function exist नहीं कर रहा था, right? Similar to this question we have introduced this question number 3, that you have to find out whether the function limit x tends to 5 by 2 of the greatest integer function x varies, exist or not. तो ये फंक्शन था और ये x की वैल्यू a इक्वल टू 5 by 2 विच इज 2.5 एक्चुअली. तो ये 2.5 पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, किया आपने इसको? देखो अब जल्दी से हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, आप पूरा प्रॉपरली उसको समझिएगा. नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वी कैन फाइंड इट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली बिकॉज जस्ट यू हैव टू फोकस इट. आपको लिखने में यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. सो फोकस दैट given function is the greatest integer function x, means left integer will be the output of the function greatest integer. Now x is equal to a is equal to 5 by 2 which is 2.5 actually 2.5 है ये. तो 2.5 में जब कुछ जोड़ेंगे आप for RHL right hand limit f of a plus h, तो f of 2.5 plus h, so h is very small, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट वाला याद रखो, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 2.5 में प्लस ये बहुत छोटी क्वांटिटी अगर आप ऐड करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो 3 से बड़ा हो जाएगा. मींस h is not so large that if you add h in 2.5 that it will become greater than 3. It always lies between 2 and 3. It means the 2.5 plus h is that quantity which lies between 2 and 3. So the output of this number will be left integer which is 2. So 2.5 plus h will be equal to 2. On the left hand side, left hand limit, you can see here limit h tends to 0 f a minus h, f a minus h, ये दिख रहा होगा आपको. तो limit h tends to 0 f 2.5 minus h, अगेन 2.5 से माइनस करेंगे ना h को, तो h is not so large that after subtracting this h from 2.5 it will become less than 2. ये इतना बड़ा नहीं है कि आप इसमें से कुछ h को कम करेंगे तो 2 से छोटा हो जाए. मतलब 2.5 minus something will be less than 2.5 but it will be greater than 2. okay? तो ये किसके बीच में लाई करेगा? अगेन 2 and 3 के. so left integer will again be 2. तो क्या करेंगे सर आप? 2.5 minus h is equal to 2. ये किसके इक्वल हो जाएगा? सिमिलरली इक्वल टू 2. नाउ इन दिस सिनेरियो यू कैन सी हियर दैट 2.5 plus h and 2.5 minus h, both the values lies between 2 and 3. both the values lie between 2 and 3, and in this scenario the output of right hand limit and left hand limit both are equal, that's why the function is continuous. Whether in the last example, previous question, you can see that इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहां पर that एक RHL 0 और एक LHL infinity,
एक LHL इसका इन्फिनिटी आ रहा था जिसके अंदर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ की जो लिमिट है देखो x टेंड्स टू a इक्वल टू 0, वो एक इंटीजर है। क्या है वो, एक इंटीजर। और यहाँ की जो लिमिट है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन की जो लिमिट है वो 5/2 विच इज 2.5 एक्चुअली, तो वो एक फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम इसीलिए क्या करते हैं कि इधर होल बन जाता है और इधर वो डार्क हो जाता है इस तरीके से। तो एक ग्राफ फंक्शन है, यानी यहां से यहां तक की सारी वैल्यू लेफ्ट साइड पर 2 पर आती है। तो एक ग्राफ के हिसाब से भी फ्रैक्शन पर कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस होता है, इसके बीच में कॉन्टिन्यूस होगा, जबकि जो एंड पॉइंट्स है उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 1 और 2 के बीच की वैल्यू होंगी तो सारी वैल्यू 1 आ जाएगा, लेफ्ट वाला इंटीजर, है ना। सो इन दिस वे यू कैन सी हियर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एज वेल। अगेन next question number 4, please see it very carefully. Now given that this function f of x equal to a to the power 1 upon x minus 1 upon a to the power 1 upon x plus 1 at x tends to 0, so a will be 0. तो यहां देखो एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्या है, a to the power infinity is always infinity and a to the power minus infinity which will become 1 upon a to the power infinity is equal to 0. ठीक है, 1 by infinity कितना होता है, 0 होता है। Now we have to find the right hand and left hand limit of this question. So RHL will be limit h tends to 0 f of a plus h. a देख रहे हो ना कितना है यहाँ पर, a is 0, so 0 plus h. Again limit h tends to 0, आपने x की जगह h रखना है, क्या रखना है, 0 plus h, h ही तो होता है। So 1 upon h, अगेन नीचे भी 1 upon h, ऊपर -1 नीचे +1। Now अगर आपने इसमें सीधा h को 0 कर दिया, if you put h equal to 0 directly here, then 1 by 0 will become infinity and e to the power infinity will again become infinity. So you have to escape from this quantity to make e to the power infinity. आपको ना e की पावर infinity नहीं होने देना है, तो क्या करें सर, e to the power 1 by h ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से आप कॉमन ले लीजिए। क्या करना है, कॉमन ले लीजिए, और जैसे आप इसमें से कॉमन लेंगे ना तो आप देखेंगे दिस e to the power h ये वाला कैंसिल हो जाएगा, लाइक दिस कैंसिल हो जाएगा ऐसे, एंड ये जो 1 है इसके 1 अपॉन e टू द पावर h आएगा, ये वाला e टू द पावर -1 अपॉन h, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो द बेनिफिट टू टेक इन कॉमन इज दैट नाउ इफ यू पुट h इक्वल टू 0 देन e टू द पावर माइनस इंफिनिटी विल बिकम 0। अगर आप इसमें h को अब 0 रखेंगे ना तो e टू द पावर नेगेटिव इंफिनिटी होगा, और e टू द पावर नेगेटिव इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर 1 minus 0 and 1 plus 0, so 1 by 1 which is equal to 1, and in this way you can see the RHL right hand limit is equal to 1. अब जरा इसका LHL देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ क्या होता है फॉर्मूला, LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h, 0 minus h, a minus h, you can see here if you put x is equal to minus of h, है ना, नेगेटिव h, तो देखो यहाँ a to the power -1 by h -1 upon e to the power -1 by h plus 1, this is plus 1 actually, okay, plus 1 here. Now देखो यहां से हमने e to the power 1 by h क्यों कॉमन लिया, to make e to the power negative so that e to the power minus infinity will become 0. तो यहां आप देखो ना ये तो नेगेटिव ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहां से कॉमन मत ले लेना, मींस कॉमन लेना मेन चीज नहीं है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी बनाना मेन चीज है। यहां हमें वो बनाना पड़ा आफ्टर टेकिंग कॉमन, बट इट इज ऑलरेडी नेगेटिव, सो यू हैव टू पुट h इक्वल टू 0 डायरेक्टली, सो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी -1 अपॉन e टू द पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1, राइट। इस तरह से आप इसकी वैल्यू यहां पर देख सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा, सो 0 -1 अपॉन 0 प्लस 1 एंड आउटपुट इज -1। ऑल्दो यू कैन सी हियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज -1 एंड राइट हैंड साइड RHL इज इक्वल टू 1, इक्वल तो नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा सर, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का एक थीम समझिए कि e टू द पावर इंफिनिटी होता है एंड e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, उसको 0 होने से मतलब ये फाइनाइट आने के लिए आपको काम करना है, इंफिनिटी होने से बचाना है। एक और क्वेश्चन देखो जरा, यस क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस x। नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस में 1 माइनस x और x इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ RHL राइट हैंड लिमिट,
f of a plus h means 1 plus h, then limit h tends to 0, f of 1 upon, देखो ये क्या लिखा है, 1 minus x है, so you have to put 1 plus x in place of x, 1 plus h in place of x, so 1 minus और x की जगह देखो क्या आ रहा है, 1 plus h. अब आप इस मॉडुलस का ही ब्रैकेट रिमूव करो जरा, 1 minus 1 minus h होगा, 1 से 1 कैंसिल, and this will become modulus of minus h. By the property of modulus, it will convert to the h. मॉडुलस की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, h में कन्वर्ट हो जाएगा. And now if you put h equal to 0, then 1 by 0 will become infinity. So directly you can see here that right hand limit does not exist. So the limit of the function, given function, will never exist. अगर एक भी RHL LHL में से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब हम कहेंगे कि फंक्शन एग्जिस्ट, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है, कहानी समझ में आ गई, बहुत सिंपल था. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अब ये फंक्शन देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये मैंने लिख इसलिए दी है, थोड़ा जल्दी से रिव्यू करना है ना. बड़ा जो लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें कंप्लीटली 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है. अगर आप देखना है तो उसमें से देख लीजिए, बट दिस इज द रिकैप, दिस इज द रिवीजन लेक्चर, राइट. तो आप इसको थोड़ा जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख ले कि क्या हो सकता है इसमें. नाउ अगेन फंक्शन f of x 3x plus modulus x upon 7x minus 5 modulus x at x equal to a means is equal to 0, right. Now RHL limit h tends to 0, f of 0 plus h limit h tends to 0. देखो h रखना है आपको x की जगह h, तो ध्यान से देखना कहीं मॉडुलस है कहीं मॉडुलस नहीं है. क्या लिखा है, 3h प्लस मॉडुलस में h, 7x तो h हो गया, minus 5 and again modulus h. So the modulus of positive quantity is again positive, right? So in this way this modulus h will become h. तो 3h plus h और नीचे क्या हो जाएगा, 7h minus 5h. तो आपको क्या नजर आया कि मॉडुलस h की वैल्यू h न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने सिस्टमैटिक तरीके से लिख दी है. तो 3 plus 1 4h होगा, 7 minus 5 2h हो जाएगा. सो ये देखो 4h upon 2h, h कैंसिल एंड 2 2 4, तो इसका लिमिट कितना आएगा, ये 2. h इसमें बचा नहीं है रखने के लिए, सो द फाइनल आउटपुट आंसर विल बी 2. सो राइट हैंड लिमिट RHL इज इक्वल टू 2. अब जरा लेफ्ट हैंड देखो, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, f of 0 minus h, 0 minus h. क्या करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, यू हैव टू पुट नेगेटिव ऑफ h इन प्लेस ऑफ x. तो यहां पर x की जगह माइनस h, यहां पर भी माइनस h, 7 माइनस h, 5 आगे भी in the modulus minus h. Now the property of modulus is that it makes the negative quantities positive, right? So जो minus h है ना, ये वाला मॉडुलस के अंदर वाला वो पॉजिटिव होगा और ये जो ब्रैकेट वाले हैं ये नेगेटिव ही रहेंगे. Are you getting my point? This ब्रैकेट वाला माइनस h ये तो नेगेटिव ही रहेगा बट मॉडुलस वाला पॉजिटिव हो जाएगा. तो क्या होगा देखो, माइनस 3h ये रहा, ये पॉजिटिव होगा प्लस h, माइनस 7h देखो ये रहा, और ये वाला पॉजिटिव होगा प्लस h, लेकिन बाहर से माइनस है तो माइनस 5h. ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन करो, माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2, माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12, एंड इन दिस वे यू कैन सी माइनस 2h अपॉन माइनस 12, माइनस से माइनस कट, h से h कैंसिल एंड 2 6 12 तो 1/6. In this way you can see the left hand limit is equal to 1/6 while RHL right hand limit is equal to 2. So in this scenario can you see here both the values are different. So right hand limit is not equal to LHL left hand limit, and in this way limit x tends to 0 f of x does not exist. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसमें फोकस करने वाली बात यह है कि जहां पर नेगेटिव ऑफ मॉडुलस h है वो पॉजिटिव h होगा और जहां विदाउट मॉडुलस है ये वाला वो नेगेटिव ही रहेगा. तो आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन सी द वैल्यूज. ठीक है, बात समझ में आ गई. एक और क्वेश्चन देखो जरा, ये मॉडुलस वाला जल्दी से. लिमिट x टेंड्स टू a, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, एक है मॉडुलस x माइनस 1 और अपॉन पर क्या लिखा है x माइनस 1 एंड प्लस 2 इज डिफरेंट. अगेन जहां भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वहां पर आपको देखना है लेफ्ट वाला इंटीजर, लेफ्ट इंटीजर. नाउ f ऑफ a प्लस h मतलब 1 प्लस h, क्योंकि x की वैल्यू a इज इक्वल टू 1 है. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ट्राई टू पुट द वैल्यू 1 प्लस h इन प्लेस ऑफ x. तो देखो ना, यहाँ x की जगह 1 प्लस h, यहाँ देखो x की जगह 1 प्लस h एंड माइनस 1 इज दिस. अगेन इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस h तो ये रहा, माइनस 1 ये आ गया, प्लस 2 ये अलग.
अब इसका क्या होगा, 1 प्लस एच इज समथिंग विच लाइज बिटवीन 1 एंड 2, 1 प्लस एच तो 1 और 2 के बीच में होगा, तो लेफ्ट इंटीजर कौन हुआ सर, 1, तो इसका आउटपुट इस वाले का 1 होगा, तो देखो ये लिखा 1, सही है। आगे देखो 1 से 1 कैंसिल इन द मॉडुलस, तो h आएगा मॉडुलस में, h मॉडुलस अपॉन सिंगल h एंड +2, ये +2, अब 1 + 2 कितना होगा 3, और ये मॉडुलस h का पॉजिटिव h का h निकल के आएगा, h से h कैंसिल एंड 3 + 1 विल बिकम 4, सो राइट हैंड लिमिट RHL इज इक्वल टू 4 हो गया, सिंपल है। अब लेफ्ट हैंड के लिए देखो, ध्यान से देखो, f ऑफ a माइनस h, 1 माइनस h, तो 1 माइनस h में क्या होगा देखो, यहां रखेंगे x की जगह 1 माइनस h, अगेन यहां पर 1 माइनस h -1 एंड इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस h -1, ये आया +2 एज इट इज, अगेन 1 माइनस h इज लेस देन 1, 1 से छोटा होगा तो लेफ्ट साइड ऑफ 1 होगा, तो 1 माइनस h विल बी इन बिटवीन 0 एंड 1, सो लेफ्ट इंटीजर विल बी 0, सो द आउटपुट ऑफ दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, देखो ये आया 0 लेफ्ट वाला, और यहां से 1 से 1 कैंसिल, मॉडुलस में -h अपॉन -h +2, नेगेटिव ऑफ एनी मॉडुलस विल बिकम पॉजिटिव, तो ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव ही रहेगा, 0 + 2 2 होता है तो वो 2 लिखा है ऐसे, h से h कैंसिल, अब यहां पर -1 बचेगा, देन -1 + 2 इज इक्वल टू 1, -1 + 2 इज इक्वल टू 1, कैन यू सी हियर दैट राइट हैंड लिमिट इज 4, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, सो बोथ आर नॉट इक्वल एंड फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के बेसिस पर आपको 1-2 क्वेश्चन और करने हैं, जैसे फंक्शन लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर x - 1 अपॉन 1 + x का ये रूट लिखा है 1/2 -1, है ना, ये 1 + x की पावर 1/2 मतलब रूट है बस इसका 1 + x का और -1, आपको इसको डिस्कस करना है, सॉल्व करना है, आपको नहीं होगा तो हम बता देंगे। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसकी भी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x = 0 पर, तो 0 से ग्रेटर ब्रांच के लिए ये वाला यूज करेंगे, और 0 से लेस ब्रांच के लिए, लेस देन, उसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, नहीं होगा तो पूछ लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पूछोगे कहाँ पूछोगे, वो जो सोशल मीडिया लिंक्स है ना, टेलीग्राम स्पेशली, है ना, बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पर पूछ सकते हैं। यस, सो व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट, व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर k की वैल्यू निकालना, तो k की वैल्यू निकालने के लिए देखना क्या होगा, मेरे ख्याल से ये यहां पर ठीक नहीं है, दिस वन इज 0, 2 नहीं है, 0 है, ठीक है, इसको 0 बना लेना। तो k की वैल्यू आपको RHL LHL को इक्वल करना है, वहां से आपको मिल जाएगी। बेस्ड अपॉन दिस एक्सरसाइज हियर इज वन स्मॉल असाइनमेंट ऑल्सो, ये 4 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है, इनको भी आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है, ये आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपकी ये प्रैक्टिस पूरी हो जाए, और इसी में से पूरे प्रीवियस ईयर में जितने भी गेट एग्जाम में सवाल आते हैं या किसी और एंट्रेंस एग्जाम में सवाल आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको लिमिट के इसी क्वेश्चन से कर सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, आज हमें इतना ही करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप हमसे जुड़ सकते हैं इन मीडिया लिंक से, है ना, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का नंबर है, ये कॉल भी कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस टेलीग्राम चैनल, ये इसका हैंडल है, आप चाहे तो इस पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा ताकि वहां से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लें। यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर सारे वीडियोज के लिंक प्लस इंपॉर्टेंटली नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो PDF नोट्स हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट टू रिवाइज, जस्ट टू लर्न फ्रॉम दिस स्मॉल लेक्चर्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।